घुसपैठ दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। হ্যাঁ, দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক হট্টমেলায় পরিণত করার চেষ্টাকে এই ভাষাতেই জবাব দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় নাগরিকদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর মমতার মরিয়া চেষ্টার মুখোশ সংসদে খুলে দিলেন তিনি। সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন একজন সুবক্তা রাজনীতিবিদের বক্তব্য রাখার পরিসর আইনসভা, আদালত নয়। বুধবার সিএএ বিরোধিতায় দায়ের মামলা শুনানিতে হাজির হয়ে আরেকবার পশ্চিমবঙ্গবাসীর নাক কাটিয়ে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতের সৌজন্য বিসর্জন দিয়ে কুৎসিত রাজনৈতিক ভাষায় এমন বক্তব্য রাখেন তিনি যে তাকে কার্যত ধমক দিয়ে থামাতে বাধ্য হন প্রধান বিচারপতি। বেইজ্জতের এখানেই শেষ নয়। এরপর আদালতের নির্দেশের কপি প্রকাশ্যে এলে দেখা যায় তাতে না আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের কোনো অংশের উল্লেখ, না কোথাও আছে তার নাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি ও তার বক্তব্য ঠিক কতটা গুরুত্বহীন তার নির্দেশের কপিতেই বুঝিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের জবাবি ভাষণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য আদালতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন বলে সরব হন তিনি। हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं है और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। এদিন সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আরও একবার বুঝিয়ে দিল কেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে আলাদা। বুঝিয়ে দিলেন একজন রাজনৈতিক নেতা তথা জনপ্রতিনিধির বক্তব্য রাখার জায়গা হলো আইনসভা, আদালত নয়। আর তারাই নিজের মঞ্চ ছেড়ে অন্য মঞ্চে ছোটে যাদের নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে নিজেদেরই সংশয় থাকে। ক্ষমতায় আসার পর থেকে অনুপ্রবেশকারীদের ভোট ব্যাংকে পরিণত করতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলায় জেলায় অনুপ্রবেশকারীর অভয়ারণ্য তৈরি করেছেন তিনি। অনুপ্রবেশকারীদের অত্যাচারে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারতীয় নাগরিক, বিশেষ করে হিন্দুদের টেকা মুশকিল হয়ে গিয়েছে। যদিও তাতে দমতে নারাজ মমতা। কখনো সিএএকে এনআরসি বলে অনুপ্রবেশকারীদের আঁচলের তলায় আড়াল করার চেষ্টা করেছেন তিনি। বিরোধিতা করেছেন শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ায় বাংলাদেশে অত্যাচারের শিকার হয়ে ভারতে আসা উদ্বাসুদের নাগরিকত্ব প্রদানকে। কখনো আবার দেশের ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াকে পণ্ড করতে মতুয়াদের শিখণ্ডি খাড়া করেছেন তিনি। কারণ সিএএ প্রক্রিয়া শেষ হলে দুধ কলা দিয়ে পোষা তার দুধেল গাইরা চিহ্নিত হয়ে যাবে যে। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।
जब युवा सशक्त होता है तो राज्य आगे बढ़ता है, और जब राज्य आगे बढ़ता है तो देश का भविष्य उज्जवल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। युवाओं की शिक्षा, कौशल और आधुनिक तकनीकों में दक्षता के लिए शुरू हुआ है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। रोजगार और करियर के अवसरों से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान और भारतीय सेना, पैरामिलिट्री व पुलिस भर्ती के लिए पार्थ योजना, जहां युवाओं को मिलेगा 360 घंटे का विशेष प्रशिक्षण। सरकारी नौकरियों में युवाओं के लिए बड़ा अवसर, 1 लाख पदों पर भर्तियां जारी और अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य। हर साल जारी होगा भर्ती कैलेंडर। भारत सरकार के PLF सर्वे में मध्य प्रदेश ने दर्ज की देश की सबसे कम बेरोजगारी दर। स्वरोजगार को बढ़ावा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी के लिए 42 लाख रुपए तक का ऋण। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ का स्वरोजगार ऋण। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 2024 में 20,000 से अधिक युवाओं को 41 करोड़ रुपए का स्टाइपेंड। स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच, 50,000 से 1,50,000 तक की वित्तीय सहायता। खेलों में भी मध्य प्रदेश आगे, 985 करोड़ से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर विकास खंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर जिले में स्टेडियम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। शिक्षा में नई दिशा, सरकारी कॉलेजों में कृषि विषय, विश्वविद्यालयों में पायलट ट्रेनिंग कोर्स, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT सैटेलाइट कैंपस, AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग। भविष्य की शिक्षा आज। ये है नया मध्य प्रदेश, जहां सपना सिर्फ देखा नहीं जाता, पूरा भी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व और युवाओं की ताकत मध्य प्रदेश को बना रही है भारत का युवा शक्ति केंद्र।